Chalo. Now, when you want to convert percentage to fractions, you have to multiply by 1 by 100. You have to multiply by 1 by 100. This is the one thing you remember. And then you remember all these standard values. All these standard values. Next thing was, if you know, if you know 1 by 2 is 50%, you know, but half of this is 1 by 4. If you divide this by 2, here also you can divide by 2, 25%. Some same way you can calculate 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32. So even if you know 1 by 2, you can calculate subsequent values. 1 by 4 means half of this one. Half of 50 is 25. Half of 1 by 4 is again 1 by 8. This is again half of 25 percentage is 12.5. If half of 1 by 8 is 1 by 16, half of this is 6.25%. 6.25%. So now the thing is, 1 by 3 is 33.33%. So if you divide this by 3, so it is 1 by 9. And again, if you divide this by 3, it is 11.11%. So like this, you can remember 1 by 6, 1 by 12, 1 by 15 like this. And standard values are 1 by 5 is 20%, 1 by 5 is 20%, 1 by 15 is, if you multiply 1 by 3, you get 6.66. Like this, you can remember 1 by 10, 1 by 15, 1 by 20 also. So now, okay, so if you remember some standard values, next thing you can calculate. And again here, again 1 by 9, all these things you should know. Okay, so in the same fashion I told you, 50% of 44, 50% is 1 by 2, 50% is 1 by 2 into 44, that is 22. Like this you can calculate, but this is not that much useful in GATE, because in GATE calculators are allowed, but you are not only going to prepare for GATE. For other exams where calculator is not allowed, you should remember all these values. You should remember all these values, standard values. Okay, so this much I repeated, this I told. So I will go for the next slide now. That is this one. Okay, one table you prepare it. So now 1 by 1 is 100%. 1 by 2 is 50%. So 2 by 2 is 100%. So just for reference, this you take as homework also, and for reference you can. Then 1 by 3 is, how to remove this? This is disturbing. 1 by 3 is 33.33%. 2 by 3 is 66.66%. Then 3 by 3, like this: 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, 1 by 5, 2 by 5, 3 by 4, 4. So like this, you prepare a table and try to remember as maximum as values. But in GATE, it is not needed. Once again, I will tell you, because 3 by 4 means 3 by 4. You can use the calculator and you can find directly. You can find directly. Now coming to the next important value, that is percentage change. So what is this percentage change? What is this percentage change? Let me tell you now. 20% value is increased. Means suppose if you have scored certain marks. So now in this examination, suppose in GT1 you have scored particular marks X, but when you write GT2, suppose if you have scored 20% more than GT1. So more than 21 means, suppose if earlier it was 100, 20% more means it is 120. It is 120. Or you can say that rate of tomato is 100 rupees kg. Now it is increased by 20%.
It is increased by 20%. Means now the rate will become 120. The rate will become 120. Suppose in the next season, again the rate dropped from original to 20%. अगेन द रेट ड्रॉप 20%. यहां पर रेट बढ़ गया था 120 हुआ, फिर 20% और कम हुआ टोमेटो का रेट, तो क्या वो फिर से 100 बनता? देखिए 100 था, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, फिर 20% घट गया तो क्या वो फिर से 100 रुपीज बनता? क्योंकि ओरिजिनली शुरू में तो 100% 100 रुपीज था, 100 रुपीज से 20% बढ़ गया, तो द रेट इज नाउ इज 120. So now again the rate is dropped by 20%. Is it again the 100 rupees? No, it is not so. देखिए 100 से 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, ओके 20% बढ़ गया 120 हो गया, लेकिन फिर 20% घटने से ओरिजिनल वैल्यू नहीं आता. ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये 20% बढ़ रहा था बेस वैल्यू यहां पर 100 था, यहां पर बेस वैल्यू कितना था? 100 था. The base value was 100 here. Now when it is decreasing 20%, it is not for 100, it is decreasing for 120. It is decreasing for 120. So base value यहाँ पर 120 है, 120 का 20% डिक्रीज हो रहा, तो 120 का 20% 96 है. 120 का 20% क्या है? 96 है. तो 20% अगर से कम हो रहा तो ये 96 हो रहा, तो 100 से 20% बढ़ गया, फिर 20% घट गया, तो अगेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट 100, you are getting 96 here. So percentage change is given by how to remove this one, I am not getting. Okay, let me ask somebody. So percentage change is given by final value. Percentage change is given by final value minus initial value divided by initial value into 100. Final value minus initial value divided by initial value into 100. So now this is final value is 120, means 120 minus 100 by 100 into 100, whatever you will get, that is the percentage change. That is the percentage change. If you want to remember, you remember this. Percentage change is given by final value minus initial value divided by initial value into 100. This formula you take down. Now certain values I will give you. And I will increase those values by 50%. I will give you certain values and I will increase those values by 50%. Means initial value 100 है, अगर से मैं 50% increase किया, तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? 100 प्लस 100 का 50%, तो 50, 100 plus 50, it is 150. In the same way, suppose if it is 200 initial value, if I increase by 50%, 50% of 200 is 100. So 200 plus 100 is 300. 200 plus 100 is 300. So final value is 300. Now, suppose if I take 500. And again add 50%. So 50% of 500 is 250. So 250 add कीजिए. 500 plus 250 is 750. 500 plus 250 is 750. In the same way, if I take 400, and if I add again 50%, it is 600. So you will get these as the initial values, these as the final values. Now I will tell you what is the increase here. So increase is 50%. 50% means how much? 50% means 1 by 2. 50% means what?
1/2, isn't it? ये जरा सोचो आप, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं परसेंटेज को रेशियो में, ये अच्छी तरह समझ लो आप। देखिए जब भी इनिशियल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 50% आप ऐड कर रहे तो ये वैल्यूज आ रहे हैं आपको। 50% मीन्स 1/2 फ्रैक्शन में। सो व्हाट इज 1/2? 1 इज न्यूमरेटर एंड d इज डिनोमिनेटर। d इज डिनोमिनेटर। अब मुझे ये बोलो ये 100 है या 150 है, इनका रेशियो क्या है? 52 जा 100, 53 जा 150। तो ये 100 और 150 क्या रेशियो में है? 2:3 रेशियो में है ना। 100 और 150 किस रेशियो में है? 2:3 रेशियो में है। सिमिलरली 200 और 300 किस रेशियो में है? 100 2 जा 100 3 जा, अगेन दिस इज इन 2:3। So what is the ratio, change in ratio of 500 into 750? So 250 into 2 into 3, 2:3. 400 600, 200 2s are 200 3s are 2:3. 1000 1500, 500 2s are 500 3s are. Then 10 15, 5 2s are 5 3s are. 10 2 3, मतलब जब भी आप 50% इंक्रीज कर रहे, इस बात को नोट करो, तो रेशियो क्या हो रहा आपका? 2:3 हो रहा। रेशियो क्या हो रहा आपका? 2:3 हो रहा। तो याद रखो, वेन एवर देर इज परसेंटेज चेंज एंड इट इज 50%, द रेशियो इज गोइंग टू बी, the ratio is going to be 2:3. Got it? Whenever there is percentage change, that is 50%, the ratio is 2:3. The ratio is 2:3. ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि देखिए इतने सारे वैल्यूज लिया है मैं, हर जगह 50% चेंज किया, लेकिन सबका रेशियो सेम आया। सबका रेशियो क्या है? सेम आया। क्या रेशियो आया? 2:3। क्या रेशियो आया? 2:3। नाउ आई विल कम फॉर डिक्रीज। अब मैं 50% कम करूंगा। देखिए इनिशियल वैल्यू 100 है, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। इनिशियल वैल्यू कम कर रहा हूं, देखिए 50% कम होगा तो ओरिजिनल 100 था, फिर 50 हो जाएगा। 200 था इनिशियल वैल्यू, 50% कम करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 100। देखिए इनिशियल वैल्यू 500 था, फिर 50% कम करूंगा तो द फाइनल वैल्यू इज 250। व्हेन इट इज 400, इनिशियल वैल्यू इज डिक्रीजेस बाय 50%, देन इट इज 200। सो मतलब देखिए सारे वैल्यूज में निकाल के रखा हूं। 100 है तो 50 हो गया, 200 100 हो गया, 500 250 हो गया, 400 200 हो गया, 1000 है जो 500 हो गया, और 10 रहे सो 5 हो गया, 20 रहे सो 10 हो गया, 20 रहे सो 10 हो गया। मतलब देर इज, अगर से हम डिक्रीज करें, 50% डिक्रीज करें, तो रेशियो देखिए सबके क्या है? 2:1 है। रेशियो क्या है? सबके 2:1 है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जब कभी भी आप 50% इंक्रीज कर रहे तो रेशियो आ रहा 2:3, और जब कभी भी 50% आप डिक्रीज कर रहे तो रेशियो आ रहा आपका 2:1। ये क्लियर हुआ आपका? तो ये 2:3 और 2:1 कैसा आया मैं आपको बताता हूं। देखिए 50% मीन्स 1/2। 50% मीन्स 1/2। 1/2 जब आप इंक्रीज कर रहे, देखिए इंक्रीज कर रहे तो 2:3 आया। 1/2 में 2 क्या है? डिनोमिनेटर है, 1 क्या है? न्यूमरेटर है। तो यहां पर डिनोमिनेटर 2 है और फाइनल वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर है। दैट इज 1/2 में 2 डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है, सो इट बिकम्स 1 + 2 3। सो 2:3। और जब कम हो गया तो यहां डिनोमिनेटर है और फाइनल वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर है। तो इतना सारा समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि whenever there is percentage change, that percentage you convert into fractions, take numerator and denominator, and initial value is given by denominator and final value is given by denominator plus numerator. This is for increase, denominator
plus numerator. And whenever there is decrease, मतलब कम हो रहा है परसेंटेज, तो उस परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालो, और फ्रैक्शन निकालकर इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर ले लो और फाइनल वैल्यू क्या ले लो आप, d माइनस n, दैट इज डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर ले लो, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर ले लो। गॉट द आइडिया? कुछ डाउट है तो पूछो। जब कभी भी आप परसेंटेज इंक्रीज कर रहे, यू गेट इट्स फ्रैक्शन। सो इंक्रीज अगर से हो रहा तो रेशियो कैसा निकालना, इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर, फाइनल वैल्यू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। और अगर से डिक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर, फाइनल वैल्यू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला, नोट डाउन। तो हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम 50% इंक्रीज करे थे। जब 50% इंक्रीज करे थे तो 50% बिकम्स 1/2, न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2, सो इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर इज 2 + 1 3। इसलिए जब इंक्रीज हो रहा सभी का रेशियो 2:3 आया, सभी का रेशियो क्या आया, 2:3 आया। और जब मैं डिक्रीज किया 50% से, तो देखिए इनिशियल वैल्यू तो आपको 2 ही रखना है, इनिशियल वैल्यू तो आपको 2 ही रखना है, लेकिन न्यूमरेटर क्या बनेगा, सॉरी फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स कराते नहीं बैठता, गेट एग्जाम नजदीक आ रहे तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्रॉब्लम कम करके सिलेबस खत्म करना है मेरे को। आपको कंप्लीट, कम से कम मैथ्स तो आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट एटलीस्ट एप्टीट्यूड तो मैं पूरा करके दूंगा आपको। ओके, सो दिस इज 50% इंक्रीज हो गए जब ऐसा होता। गॉट इट आइडिया? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर होता। देखिए यहां पर आइए, 25% है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 4, न्यूमरेटर कितना है, 1। तो यहां पर इंक्रीज कितना होता है, देखिए डिनोमिनेटर 4 एज इट इज रखिए। अगर से 25% इंक्रीज हो गया तो इनिशियल वैल्यू 4 रहता, फाइनल वैल्यू 4 + 1 5 रहता। अगर से 25% डिक्रीज हो रहा है, if it is decreasing by 25%, then the initial value becomes 4, whereas the final value becomes 4 - 1, because numerator में 1 है, मुझे यहाँ 1/4 लिखना था लेकिन है ना, बस है 4 - 1 3। So this is the concept. If you have any doubts in this concept, please। आज सब मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा और प्रॉब्लम्स में जरा थोड़ा कम करते जाता हूँ, आप लोग खुद ज्यादा करो क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। पहले क्या था कि आपको गेट एग्जाम नहीं था, मुझे 1 साल और खींचना था, लेकिन अब ऐसा है नहीं, हम एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर टाइम बचा तो प्रॉब्लम्स रिवाइज करेंगे। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कन्वर्ट द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, you have to convert the initial value and final value when percentage increase is given. Now ये छोटा सा प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देखो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, उसका रेट 12.5% बढ़ रहा है। तो याद रखो आप, उसका रेट क्या बढ़ रहा है, 12.5% बढ़ रहा है। और बढ़ने के बाद आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स रेट इज नाउ 36। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज देयर, it is increasing by 12.5%, and after increasing its rate is 36%. If it is so, what is its initial value? ऐसे क्वेश्चंस पूछता देखिए एग्जाम में, छोटे छोटे, तो आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर ये वैल्यू है, उसका वैल्यू का प्राइस हमको नहीं मालूम। प्लीज देखो इधर, समझने की कोशिश करो, सिर्फ समझना है यहाँ पर। और उसका वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन उसका वैल्यू अगले साल या अगले महीने में 12.5% के रेट से बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद
इट्स रेट इज 36 रुपीज, रुपीज समझे या कुछ भी है, 36 हो गया, तो उसका स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, उसका स्टार्टिंग वैल्यू कितना था। तो ये आप अगर से स्मार्ट है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप बहुत सारे तरीके से ये कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई भी टॉपिक अगर से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे ही फॉलो नहीं करना है। आपके पास और कोई, आप मुझसे होशियार है, मुझसे स्मार्ट है, आपके पास कोई और मेथड है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। या कुछ लोग फटाक से क्या करते हैं, 100 को 12.5% बढ़ गया, 36 बढ़ गया, कितना, वैसा भी कर सकते हैं आप। ये आपके ऊपर है, या आपके और कोई टीचर आपको अलग तरीके से पढ़ाया तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड से करो। तो मैं आपको यहां बताता हूं, देखिए यहां पर 12.5% एक्स का वैल्यू बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 36 हो गया। तो आपको क्या निकालना है कि एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है। अब ये देखिए यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है निकालने के लिए कितना परसेंट बढ़ा है, 12.5%, और 12.5% फ्रैक्शन में कितना है, 1/8। ये आपको याद रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोला प्रॉब्लम फास्ट हो जाते, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, 10-15 भी आप याद रखें ना, जैसा 50% 1/2 है, तो 12.5% इज 1/8। यहां पर इंक्रीज हो रहा, जब इंक्रीज हो रहा तो इनिशियल वैल्यू इज डिनोमिनेटर, इनिशियल वैल्यू इज 8, फाइनल वैल्यू इज डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, दैट इज 8 + 1, इट इज 9। मतलब इनिशियल वैल्यू 8 है तो फाइनल वैल्यू कितना है, 9 है। इनिशियल वैल्यू अगर से 8 है तो फाइनल वैल्यू कितना है, 9 है। लेकिन हमारे केस में फाइनल वैल्यू कितना है, 36। 36 लिखो, तो 9 से 36 कब आता, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पर इनिशियल वैल्यू 8 है तो फाइनल वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32। देखिए कितना जल्दी हो जाता आपको। तो इनिशियल वैल्यू वाज 32, इनिशियल वैल्यू वाज 32। समझ में आपको, एक मटेरियल था, उसका प्राइस 12.5% के रेट से बढ़ा, उसका रेट 12.5% के रेट से बढ़ा और बढ़ने के बाद 36 हो गया, तो इनिशियल वैल्यू कितना था, आपको क्या निकालना है, इनिशियल वैल्यू कितना था। तो 12.5% इंक्रीज हो रहा, अगर से वो इंक्रीज हो रहा है, अगर से वो इंक्रीज हो रहा है, जस्ट मिनट, इंक्रीज हो रहा है तो 1/8 बनेगा। तो 1/8 रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो इनिशियल वैल्यू 8 और फाइनल वैल्यू तो 8 + 1 9। तो 9 मतलब डिस्टर्ब करते रहते, पूरा क्लास खत्म होने तक आते। ओके, तो 8:9 हो गया है और फाइनल वैल्यू है आपका 36। फाइनल वैल्यू कितना आपका 36, तो इनिशियल वैल्यू कितना होगा, देखिए रेशियो में 9 to 36 है, तो 8 को 32। कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। इस आज सब छोटे 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 कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। अगर से आपको समझ में आया तो अगला प्रॉब्लम आप करो। एक और ऑब्जेक्ट है, उसका ओरिजिनल प्राइस x था और डिक्रीज हो गया 11.11% और फाइनल वैल्यू हो गया 64, तो उसका वैल्यू कितना है। प्रगति, shall I repeat? Okay बेटा, I will repeat it. देखो इधर प्रगति उसी है। क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन लिखा है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस हमको नहीं मालूम, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस हमको नहीं मालूम, लेकिन 12.5% बढ़ने के बाद उसका इंक्रीज होगा रेट, 12.5% बढ़ने के बाद उसका रेट होता 36। तो मुझे क्या करना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो मैं आपको क्या बोला था, 12.5% मतलब 1/8 और यहां पर इंक्रीज है। जब इंक्रीज है तो मैं यहां पर लिखाया था आपको इनिशियल वैल्यू d, फाइनल वैल्यू d + n, d मींस डिनोमिनेटर, n मींस न्यूमरेटर। ये तो समझ में आया ना प्रगति, पिछला वाला। तो अब 12.5% मींस 1/8, तो इनिशियल वैल्यू तो 8 बनेगा जैसा कि डिनोमिनेटर है, फाइनल वैल्यू बनेगा d + n, दैट इज 8 + 1 9। मतलब इनिशियल वैल्यू 8 है तो फाइनल वैल्यू 9 बनेगा, कब, अगर से आपका 12.5% के रेट से इंक्रीज हो रहा। तो इंक्रीज होने के बाद हमारे पास 36 है,
तो 9 को 8 है तो 36 को कितना, या यहाँ पर 4 टाइम्स बढ़ा तो यहाँ पर भी 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा आपको? तो 9 को 8 है, 36 को कितना, तो इट इज 32। 9 4 जा है, 8 4 जा है। अभी समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार ट्राई करो, ये क्वेश्चन करो, आपको और क्लियर होता है, या एक दो और प्रॉब्लम करेंगे हम ऐसे, आपको क्लियर होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का रेट कम हो गया, ऑब्जेक्ट का रेट कम हो गया। कितना कम हो गया? 11.11% कम हो गया, और कम होने के बाद उसका प्राइस है 64। कम होने के बाद उसका प्राइस है 64, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल प्राइस कैसे, जैसा पिछला करे थे सेम करो। आपको हिंट देता हूं मैं, 11.11% इज 1/9। आपको याद नहीं है तो ओके आरवी, वेरी गुड। हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन? कौन बोला 56? 56 हियर आई हैव गिवन यू स्टैंडर्ड वैल्यूज बताया था मैं, बट आप लास्ट क्लास में बताया था आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना, फिर 1/100 करना। जरा नोट्स देखो। हाँ, तो ये करो, बहुत इजी है। आरवी हैज डिड। ये एक ऑब्जेक्ट है, जरा केयरफुली करो। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका वैल्यू 11.11% कम हो गया, और कम होने के बाद उसका रेट है 64। कम होने के बाद उसका रेट है 64। तो 56 देखो इधर 11.11% है। 11.11% कैसा आता? 1/9। परसेंटेज टू फ्रैक्शन पूछे ना आप, क्या पूछे देखता हूं मैं चार्ट में, क्या पूछे आप? परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इज, मल्टीप्लाई करो बेटा 1/100। 11.11 इंटू 1/100 करे तो भी आता, लेकिन मैं आपको बोला था स्टैंडर्ड चीजें आप याद रखो। 11.11 मीन्स 1/9। 1/9 means initial value is denominator 9. Initial value is 9 and final value is 9 minus 1, that is d minus n। 32 नॉट बेटा। देखिए प्राप्ति, जब रेट कम हो रहा है तो आप 32 कैसा ले रही? हाँ 64 हो रहा है, कम होने के बाद तो रेट शुरू में ज्यादा होना चाहिए ना। तो देखिए 1/9 हो गया। 1/9 में तो डिनोमिनेटर 9 है, तो इनिशियल वैल्यू 9 रहेगा। न्यूमरेट फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिक्रीज में माइनस करना, 9 minus 1 8। तो 9 इनिशियल वैल्यू है, 8 फाइनल वैल्यू है, और फाइनल वैल्यू हमारे पास 64 है, तो 8 8 जा 64, और फाइनल वैल्यू यहां पर 9 8 जा करो 72 आता। तो ये मेथड आप सीख लो, बहुत इजी है, ये फटाक से होते हैं। आप दूसरे मेथड से करें तो थोड़ा लेंदी होता। आज मैं जो भी आपको मेथड्स बता रहा हूँ, बहुत मतलब सोच सोच समझ के प्रैक्टिस करके, इधर उधर वीडियोस फॉलो करके देख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज फॉलो दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर। 56 इज इट क्लियर नाउ? तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यूज आप याद रखो। 1/2 इज 50, 1/3 इज 33.34, 1/5 इज 20%, 1/4 इज 24%। ऐसा जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है आप उनको याद रखो, आप उनको याद रखो। ठीक है, समझ में आया? लिख लो प्लीज। अगर से समझ में आया तो अगला प्रॉब्लम करो। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका रेट 44.4% इंक्रीज हो गया। 44.44% इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज के बाद 39 हो गया। तो 39 हो गया, तो व्हाट इज द रेट? व्हाट इज द रेट? तो 44.44% आई हैव टेकन 4/9। आप बोलेंगे सर आप कैसा लिए? तो 1/9 11.11% है। ओके आरवी हैज गॉट द आइडिया आई थिंक। फटाफट कर रहा हूं, आप लोग भी करो प्लीज। देखिए 1/9 11.11% है, तो 44.44% मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 4/9। ये थोड़ा आपको क्लिक हो ना, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते आ जाता। करो प्लीज। ओरिजिनल वैल्यू एक्स है, 44.44% इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज के बाद 39 आया। इंक्रीज के बाद 39 आया, तो व्हाट इज द वैल्यू?
प्लीज। तो 4/9 आया, 4/9 आने के बाद ओके प्राप्ति, नाउ यू डिड राइट, वेरी गुड। प्रीतिश आल्सो डिड। देखिए 4/9 आया मतलब डिनोमिनेटर 9 है और न्यूमरेटर 4 है, तो इनिशियल वैल्यू 9 ही बनेगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है इसलिए फाइनल वैल्यू 13 बनेगा। तो इनिशियल वैल्यू इज 9, फाइनल वैल्यू इज 13, तो हमारा रेट आया 39। तो ये 3 टाइम्स, तो 9 3 करो 27, यू विल गेट 27 एस। वेरी गुड शीतल। तो आया आइडिया प्लीज? नहीं आया शुरू में तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं आपको, और मैं आपको जो भी एप्टीट्यूड बता रहा हूं प्लीज प्लीज अटेंड करो, इसको फॉलो करो। और एप्टीट्यूड मैं आपको 10 बार समझाया, ये हर एग्जाम में काम को आता, सिर्फ आप गेट का मत सोचो। और गेट गेट गेट, आप गेट करके नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, मैं आपको वो भी बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब गेट नहीं देना ऐसा नहीं है। आप गेट देने से क्या होता, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एप्टीट्यूड के, मैथ्स के, इंग्लिश के और सिविल इंजीनियरिंग के, व्हिच इज यूजफुल फॉर यू इन अदर एग्जाम्स आल्सो। तो एट प्रेजेंट यू आर ओनली एलिजिबल फॉर राइटिंग द गेट, you cannot write MPSC in third year, you cannot write UPSC in third year, so better you prepare fully now for gate, that is going to useful for you. Okay, so now एक ब्रेक होता छोटा सा, तो उस वक्त आप ये प्रॉब्लम करके रखो। यक्स है 27.27% इंक्रीज है और इंक्रीज के बाद 98 है, तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? ये क्वेश्चन लिख लो और आके एक बात करो। एक वैल्यू है यक्स, वो इंक्रीज हो रहा है 27.27% से और इंक्रीज के बाद 98 हो रहा है, तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू? प्लीज करके रखो। अभी ब्रेक होता है, उस ब्रेक के टाइम करके आने के बाद मेरे को आंसर बोलो।